Assalamu alaikum. I am your biology teacher from Honors Kindergarten and Secondary School, Lahore. Welcome to my second online lecture of Class 9 Biology, and the topic is cell cycle. Let us see what is in this chapter. In this chapter, you will learn about cell cycle, process of mitosis and meiosis and their significance, comparison between mitosis and meiosis, and apoptosis and necrosis. Before starting cell cycle, we should know that what is life continuation. ज़िंदगी किस तरह से बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ एंड बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल. यानी हमारा जो हर सेल है वो बढ़ रहा है. अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ वर्च्यू, ऑमनिस सेलुलर सेलुलस, दैट ऑल सेल कम्स फ्रॉम सेल. यानी जो पेरेंट सेल है उसकी बॉडी से ही जो है वो नए सेल अराइज होते हैं और फिर इस तरह से न्यू सेल फॉर्मेशन होती रहती है. दैट रिप्रोडक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन. और ये जो रिप्रोडक्शन हो रही है सेल्स की, इसको सेल डिवीजन का नाम दिया गया है, विच इज़ द पार्ट ऑफ होल लाइफ ऑफ सेल कॉल्ड सेल साइकिल, और इसको सेल साइकिल कहा जाता है. Now, what is the relation between nucleus, chromosome, DNA and gene? Students, you know that nucleus is present in the cell and it controls all the activities of cell. It possesses chromosome, a specific number of chromosome present in each organism. हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. जैसे कि इसमें बताया कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग इज प्रेजेंट एंड इट दिस न्यूक्लियस possess this duplicated chromosome during cell cycle, and it possesses a million of DNA, and these sections of DNA are called genes. They possess a specific nucleotide. What is chromosome? These are thread-like or condensed structure found in nucleus. Usually जो formation है वो इनकी thread-like और condensed form होगी. ओके, यानी थिक स्ट्रक्चर होगा. लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो वो डुप्लीकेट करते हैं या फिर डबल हो जाते हैं नंबर में. नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ स्पीशी एंड ऑर्गेनिज्म. हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. उसके अलावा हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ सोमैटिक सेल हैं या जनरल बॉडी सेल हैं बॉडी के, दे possess chromosome which are in uh, pair form, or they are complete number of chromosome present. Okay, whereas in gametes, you can say in a sperm cell or an ovum cell, it possess half number of chromosome. और यूजुअली क्या कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस का प्रोसेस. व्हाट इज basis of heredity? Basis of heredity is gene. ओके, एंड जीन आर द सेक्शन ऑफ डीएनए. डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है टू ट्रांसमिट इट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. नाउ व्हाट इज सेल साइकिल? इट इज सीरीज ऑफ events from the time a cell is produced until it complete mitosis and produce new cell. यानी हर सेल जो है बॉडी का वो डिवाइड करता है, और जब तक वो अपनी माइटोसिस या फिर डिवीजन पूरी तरह से नहीं कर लेता या डॉटर सेल में डिवाइड नहीं हो जाता, तब तक ये सेल साइकिल कंप्लीट नहीं होती है. ओके, सेल साइकिल हमेशा possess करती है इन टू phases. Number one phase is called the interphase and second one is the mitotic phase. Now first of all we have to discuss what is interphase. Look at this picture. During interphase, chromosomes are duplicated, sister chromatids are formed with centromere. It is the duplication of chromosome. Okay, cell metabolic activities are very high at this stage and they divide into three phases: G1 phase, S phase and G2 phase. Now look at this picture. It describing the different stages of interphase. Number one is the G1 phase. Cell is started cell cycle in G1 phase, and during this phase cell increases its supply of protein. Number of organelle are also increased, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है, कि वो मुख्तलिफ एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को. सेल ग्रो करता है साइज में,
ओके, उसके बाद स्टार्ट होती है एस से, जिसमें डीएनए सिंथेसाइज होता है। ओके, सेल डुप्लीकेट करता है क्रोमोसोम में। एज ए रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, यानी 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती हैं एस फेज के दौरान। G2 फेज देखें, इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड स्पिंडल, यानी राइबोसोम और स्पिंडल फॉर्म करती हैं, यानी कि न्यू प्रोटीन्स फॉर्म करती हैं। उसके बाद फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है फेज दैट इज़ कॉल्ड द माइटोटिक फेज, जिसके अंदर डॉटर सेल फॉर्म हो जाती हैं। Look at this picture, it is G0 and G1 phase. G0 phase is also called the resting phase. Okay, multicellular eukaryotic cell में G0 phase cell enter G0 phase from G1 and stop dividing. ठीक है, और फिर वो रुक जाता है, डिवाइड नहीं करता। हाँ, सम सेल रिमेन इन G0 फॉर इंडेफिनिट पीरियड, यानी कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग फेज में रहते हैं, जैसे कि न्यूरॉन सेल है, वो इस तरह से डिवाइड नहीं होते तेज़ी के साथ। ओके, S and G2 phase. Look at this picture. In S phase DNA synthesis occur, whereas in G2 phase RNA and spindle fibers are formed. What is the time duration of this cycle? G1 phase और G0 phase यूजुअली सेल 11 आवर्स तक इस फेज़ में रहता है। उसके बाद S फेज़ और G2 फेज़ इट रिक्वायर 4 आवर्स एंड M फेज़ रिक्वायर 2 आवर्स, और यूजुअली 24 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए लगता है। देन माइटोटिक फेज स्टार्ट। व्हाट इज माइटोटिक फेज? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन विच अ सेल डिवीजन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। पेरेंट बॉडी ही 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा इक्वल रहते हैं, जैसे कि पेरेंट सेल में होते हैं। लुक एट दिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस nuclear division first of all occur, which is called the karyokinesis. It is divided into 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. After that cytokinesis occurs, in which cytoplasm is divided into daughter cells. Now first of all, what is prophase? The genetic material in nucleus is in a loose thread like form normally. ओके, जिसको क्रोमैटिन का नाम दिया जाता है। लेकिन जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो क्रोमैटिन कंडेंस होता है और ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है, यानी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बन जाते हैं। इट पोजेस अ जेनेटिक मटीरियल। ओके, काइनेटोकोर फॉर्म हो जाती है इस पर। ओके, जिसमें स्पिंडल फाइबर के साथ ही क्रोमोसोम अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि स्पिंडल फाइबर दिखाई गई हैं, जिनका काइनेटोकोर अटैच हो रहा है विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेट प्रोफेज में आप देखें कि स्पिंडल फाइबर कंप्लीट फॉर्म होने के बाद इसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो चुकी है, यानी कंप्लीट सेट बन जाता है। मेटाफेज इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ माइटोसिस, और इसमें स्पिंडल फाइबर ग्रो करती है एक लेंथ तक, और फिर उसके बाद काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच हो जाती हैं विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, और फिर ये जो 2 काइनेटोकोर फाइबर्स होती हैं, ये अपोजिट पोल्स पर ले जाती हैं क्रोमोसोम को। अब यहाँ पर देखिए आपके क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं टूवर्ड इक्वेटर या फिर सेंटर की तरफ, और इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। यानी जब क्रोमोसोम अपने आप को सेंटर में ले आते हैं, या ड्यू टू दिस मेटाफेज प्रोसेस, अ मेटाफेज प्लेट इज फॉर्म। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे देखिए कि क्रोमोसोम के साथ सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं एक दूसरे के साथ, और फिर उसके अलावा काइनेटोकोर है स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच करने के लिए। मुख्तलिफ चेंजेस जो कि क्रोमोसोम में आ रही हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गई हैं, सेंट्रोमियर फॉर्मेशन हो गई है, सेंट्रोमियर के साथ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाती है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होती है, यानी ये डबल स्ट्रैंड है क्रोमोसोम की, जिनको क्रोमेटिड का नाम दिया गया है, इनका सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, और सिस्टर क्रोमेटिड या फिर एक दूसरे के जो मुमासलत जो रखती है आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स, वो बन जाती है।
अब यहाँ पे देखें इस प्रोसेस में जिसको एनाफेज कहा गया है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर दे कनेक्ट विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम एंड स्टार्ट टू पुल टूवर्ड द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम्स। यानी खींचते हैं या फिर स्ट्रेच होती हैं स्पिंडल फाइबर, और फिर उसके बाद ये क्रोमोसोम सेट है ये सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे देखें इस पिक्चर में एक सेट क्रोमोसोम का इस तरफ है और दूसरा सेकंड पेयर ये है। फिर उसके बाद टेलोफेज फेज स्टार्ट होती है जो कि रिवर्स है बिल्कुल प्रोफेज का। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप वो भी डिवाइड हो जाता है और क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं टू डॉटर सेल्स में, और फिर उसके बाद जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन में डिवाइड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ साइटोकिनेसिस इज स्टार्ट एंड इट इज़ अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में मुख्तलिफ तरीके से होगी। इसमें जो प्रोसेस होगा इट इज़ कॉल्ड द क्लीवेज। आप यहाँ पे देखेंगे क्लीवेज फरो बन रही है, यानी कि इसके अंदर आप देखें किस तरह से एक वॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और फिर उसके बाद ये अटैच होता है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आहिस्ता आहिस्ता ये वैक्यूल्स बनकर टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। इट इज़ साइटोकिनेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है, वेसिकल फॉर्म होते हैं इन द प्लाज्मा इन द सेल, और फिर इसके अलावा वो अटैच होते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल प्लेट फॉर्म होती है और फिर उसके बाद जो है वे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट सेल लाइक फ्रेगमोप्लास्ट। Second cell division is called meiosis and it is usually occur in gametes in sperm cell and ovum cell. Cell division with nucleus of a cell divide twice to form four daughter cell, और इसके अंदर टू डिविजन्स होती है, मियोटिक 1 डिवीजन और मियोटिक 2 डिवीजन, और फिर उसके बाद 4 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट बॉडी। लुक एट दिस पिक्चर, इट इज़ प्रोफेज 1। ये मियोसिस का प्रोसेस भी 4 फेजेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मियोटिक 1 में प्रोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, इस तरह से ये कंप्लीट होती है और उसके बाद 2 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं। मेजर थिंग मियोसिस में जो हो रही है वो है सिनैप्सिस, जिसमें पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि पैटर्नल और मैटरनल साइड से जो क्रोमोसोम आते हैं ये क्रॉस ओवर करते हैं। क्रॉस ओवर का मतलब है कि वो अपनी एक पॉइंट पर आकर, जिसको कैस्मा फॉर्मेशन कहते हैं, वहाँ पर आकर क्रॉस होती हैं और फिर अपनी जो जीन है उसको ट्रांसमिट करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद इस प्रोसेस को कहा जाता है बाइवैलेंट और सिनैप्सिस फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। ओके, और ये अपने एक्सचेंज करती हैं सेगमेंट्स को। मेटाफेज 1 में फिर उस तरह से दोबारा मेटाफेज प्लेट बनती है, अरेंज होते हैं क्रोमोसोम इन द सेंटर। ओके, एनाफेज 1 में पुल करता है स्पिंडल फाइबर और फिर ये क्रोमोसोम पेयर डिवाइड हो जाते हैं टूवर्ड डिफरेंट पोल। और टेलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से नई फॉर्म होती है, क्लीवेज फरो बनती है साइटोकिनेसिस के प्रोसेस में, और फिर इस तरह से 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। लुक एट दिस पिक्चर, मियोसिस 1 में आपने देखा कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फाइनली इन मियोटिक आफ्टर मियोटिक 1 डिवीजन। आफ्टर दैट मियोटिक 2 डिवीजन स्टार्ट। मियोटिक 2 डिवीजन में इंटरफेज 2 स्टार्ट होती है जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ओके, इसमें हैप्लॉइड डॉटर सेल इस फेज़ में आते हैं जिसको इसका रेस्टिंग फेज़ भी कहा जाता है। इसके अंदर कोई एस फेज़ नहीं होती है। ओके, एंड देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस स्टेज। आप देखिए पहले से ही जो है वो डुप्लीकेटेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं आफ्टर फर्स्ट मियोटिक 1 डिवीजन। मेटाफेज 2 होगी। मेटाफेज 2 में आप देखें किस तरह से दोबारा से मेटाफेज एक प्लेट बनती है, काइनेटोकोर अटैच होती हैं, एनाफेज में दोबारा से स्ट्रेच होगा मेटाफेज स्पिंडल फाइबर्स और फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। और फिर टेलोफेज में आप देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होगी, सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम, और फिर उसके बाद आप देखें कि साइटोकिनेसिस होगी,
डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगी। अब आप देखिए कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इसमें बताया हुआ है कि पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू मियोटिक वन डिवीजन, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ पे देखें कि ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए आफ्टर फर्स्ट मियोटिक वन डिवीजन, एंड दीज डॉटर न्यूक्लियाई आर again divide to form a two daughter cell from each cell, and finally four daughter nuclei are formed after meiotic two division. It is the whole process of meiosis. ओके स्टूडेंट, अब आपने देखा कि माइटोसिस और मियोसिस में कई जगह पर डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे। माइटोसिस में टू डॉटर सेल आर फॉर्म फ्रॉम पेरेंट बॉडी, यानी पेरेंट बॉडी से टू डॉटर सेल फाइनली फॉर्म होते हैं, और मियोसिस में फोर डॉटर सेल फॉर्म होते हैं आफ्टर मियोटिक वन एंड मियोटिक टू डिवीजन। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहते हैं माइटोसिस के अंदर, पेरेंट बॉडी में जिस तरह से होंगे उतने ही होंगे, और मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ ना हो जाएंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे। माइटोसिस हमेशा जनरल बॉडी सेल में, यानी बॉडी के जो मुख्तलिफ सेल्स होंगे सोमैटिक सेल्स उसमें होती है, जबकि मियोसिस हमेशा गैमीट्स में होगी, जैसे कि स्पर्म एंड एग सेल इन एनिमल, और प्लांट में स्पोर फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ मियोसिस। लुक एट दिस पिक्चर, इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस, जिसमें पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है कि क्या चेंजेस आती हैं। ओके, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? क्या फ़ायदा है माइटोसिस का? माइटोसिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ नेचर। ओके, इसमें क्या है कि मेंटेन करता है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर सेल के अंदर एक जैसा रहेगा बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, ये किस तरह से हो रही है? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के दौरान, यानी जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है, जब बेबी एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा होता है, तो एम्ब्रियो की ग्रोथ में जो प्रोसेस होगा इट इज़ माइटोसिस। उसके अलावा आफ्टर बर्थ जिस तरह से बेबी ग्रो कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हर इंसान बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि ये हर जनरल बॉडी सेल में हो रही है। सेल रिप्लेसमेंट, ये कुछ ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं जैसे कि स्किन है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसमें मुख्तलिफ हमेशा कंटिन्यूसली जो है वो स्लफ्ट ऑफ हो रहे हैं सेल, या फिर यूँ समझे कि वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं सेल फ्रॉम इनटू अ न्यू सेल। ठीक है, और जो पुराने सेल हैं वो ख़त्म होते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ माइटोसिस। रीजनरेशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी रीजनरेट करती है, यानी अगर एक पार्ट अगर टूट जाए या फिर ख़त्म हो जाए तो उसी जगह पर उसका नया पार्ट बनना शुरू हो जाता है। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन अकर यूजुअली इन स्टार फिश। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हाइड्रा बॉडी है, इसमें बडिंग होती है या बर्ड फॉर्म करती है, और फिर वो बर्ड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो करती रहती है, न्यू सेल बनता है और वो न्यू एक डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एरर इन माइटोसिस कॉज जीन म्यूटेशन और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, जैसे कि ट्यूमर्स हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं, ऐसे ट्यूमर्स जो कि कोई किसी एक लोकेलिटी पे हैं तो उसको बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। ठीक है, मैलिग्नेंट जो कि पूरी बॉडी में शिफ्ट हो जाते हैं, दैट आर कैंसरस इन नेचर, इनको कैंसर कहा जाता है। मेटास्टेसिस होती है, यानी सेल टू सेल जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं और फिर उस तरह से स्प्रेड करती है डिजीज़। What is the significance of meiosis? Meiosis is required for the maintenance of the chromosome number in next generation, यानी जो अगली नस्लों में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को मेंटेन रखने के लिए प्रोसेस ऑफ मियोसिस होना ज़रूरी है। जैसे कि पेरेंट बॉडीज़ में अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ऑब्वियसली अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, तो आगे आने वाले जनरेशन में भी 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ही रहेगा। ओके, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, उसके अलावा वेरिएशन होती है। आपको पता है कि आपके पेरेंट्स से कुछ चीज़ें आपसे मुमासलत रखती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये तमाम वेरिएशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में इट इज़ बिकॉज ऑफ मियोसिस। लुक एट दिस पिक्चर, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन स्पर्म सेल। ओके, जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देखें कि आखिर में स्पर्मेटिड की फॉर्म में फॉर्म होते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन ओवम सेल, ओके, जिसमें ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है और आखिर में ओवम जो फॉर्म होगा उसमें हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे, यानी कि 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे। ओके, अच्छा, ये सेल मुख्तलिफ तरीके से जो ग्रो कर रहा है उसमें कई बार ऐसा होता है कि सेल डेथ होगी बिकॉज ऑफ अ रीज़न, कि कुछ सेल होंगे जो कि उनको ख़त्म हो जाना होता है, यानी वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद उसको
न्यू सेल आएंगे और वो जो पुराने सेल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें जो है वो टू प्रोसेस हैं, जैसे कि एपोप्टोसिस है एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस को कहा जाता है प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि प्लान्ड सेल डेथ है इसमें। ओके, इसमें मुख्तलिफ प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले सेल श्रिंक हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है साइज़ में, छोटा सा राउंडेड बॉडी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसका साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है बाय एंजाइम ऑफ अ सेल इट सेल्फ, यानी इसके लाइसोसोम खुद ही उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। ओके, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। न्यूक्लियस स्प्रेड कर जाता है, क्रोमेटिन बॉडीज़ पूरे सेल में स्कैटर्ड हो जाती हैं, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो इरेगुलर बर्ड्स बन जाती हैं जिनको ब्लैब्स कहा जाता है। और ये ब्लैब्स कहा जाता है इनको एपोप्टोटिक बॉडीज़। और यही एपोप्टोटिक बॉडीज़ फैगोसिटाइज हो जाती हैं बाय अदर सेल, यानी लाइसोसोमल सेल्स जो होते हैं या फिर बॉडी के मुख्तलिफ WBCs हैं वो उनको इंगल्फ कर लेते हैं। और इस तरह से ये जो सेल हमारी बॉडी में ख़त्म हो रहे होते हैं या अपनी लाइफ टाइम या लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं, वो बाय द हेल्प ऑफ एपोप्टोसिस ख़त्म हो जाते हैं। ओके, एपोप्टोसिस क्यों होती है? जब सेल जो है वो किसी स्ट्रेस कंडीशन में आ जाए या अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर ले, और फिर इस तरह से ये नेचुरली रिमूव हो जाता है फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, ये डेवलपमेंट में हमारी जो मुख्तलिफ ग्रोथ के जो प्रोसेस हैं उसमें ये ज़रूरी है इसका होना। ठीक है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, द सेल बिटवीन देम अंडरगो एपोप्टोसिस एंड द डिजिट्स सेपरेट। जिस तरह से एपोप्टोसिस की वजह से जो हमारी जो डिजिट्स हैं वो बनती हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस ड्यू टू सेल इंजरी या फिर हाइपोक्सिक सेल होता है, यानी कि ऑक्सीजन इसके अंदर अगर कम हो जाए किसी भी सेल में, यानी ब्लड सप्लाई अगर डिसकनेक्ट हो जाती है तो कोई किसी सेल में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। इसमें सेल का साइज़ जो है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, सेल उसके बाद ब्रेक कर जाता है। जैसे ही ब्रेक करता है क्या होता है कि उसमें लाइसोसोमल सेल्स होते हैं उसको इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं और फाइनली सेल डेथ हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखें कि एपोप्टोसिस की वजह से ये जो डिजिट फॉर्मेशन होती है वो होगी। अभी हमने देखा कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यू टू प्रोसेस ऑफ मियोसिस। कुछ हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं और कुछ नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक जो कि नहीं ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। Now, what are the key points of this chapter? सेल डिवीजन इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल, यानी पेरेंट बॉडी ही डिवाइड होती है और वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। माइटोसिस में हमने देखा कि 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं आफ्टर मियोटिक 1 एंड मियोटिक 2 डिवीजन, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं इन डॉटर सेल्स। ओके, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी एंड जीन इट इज फंक्शनल यूनिट। ओके स्टूडेंट, अब now you should do your book work, complete your book work and match the answers given in textbook. You should complete your MCQs on page number 104 and 105. Okay, for further information you should visit these sites. It is all from my side. Thanks for watching.